सचमुच में खुदा की Recording हुजूरी in को वहाँ पर progress. एंजॉय करते हैं। The sister Tina was encouraging the congregation. और सिस्टर टीना कांग्रेगेशन को एनकरेज कर रही थी। She rightly said, the God has given us lips, so we have to use these lips to release the fire. और हमारे ये जबान, ये होठे खुदा ने दी है, तो उसको हमने रिलीज करना है खुदा की आग को लाने के God लिए। has given us these beautiful fingers or hands. और खुदा ने ये हाथ और उंगलियां दिया है। So when we jump, when we lift our hands, they become the weapons against our enemy. और जब हम उसको उठाते हैं तो वो हथियार बन जाते हैं हमारे दुश्मनों के खिलाफ। So hallelujah, feel free, hallelujah, to worship God in the presence of God. और इसीलिए आप पूरी आजादी के साथ खुदा की हुजूरी में प्रस्तिश करें, उसकी आराधना करें। Yes, it is good to worship God with a nice voice. और ये अच्छी बात है खुदा को अपने अच्छे आवाज के साथ हम खुदा की आराधना करें। It is a blessing to worship God with the music. और म्यूजिक के साथ हम खुदा की आराधना करें, अच्छी उसमें बरकत है। But same time we can clap, we can lift our hands and we say, thank you Lord, you are with me. और फिर वही हम हमारे हाथों को हम तालियां बजाएं, हाथों को उठाएं और खुदा को शुक्र करें। And Sunday school, any children are there, please, hallelujah, you can go to the Sunday school. और संडे स्कूल के कोई बच्चे हैं तो वो संडे स्कूल में जा सकते हैं। So we are going to learn from the word of God. और आज खुदा के कलाम से हम सीखने वाले हैं। Hallelujah. Last 3 weeks we were studying from Romans chapter 5 verse number 17. और पिछले 3 हफ्ते से रोमियो की किताब 5:17 से हम सीख रहे थे। So anyone you can remember what was the, hallelujah, 2 things that God has given to us through this scripture? क्या आपको याद है 2 बातें जो खुदा ने हमें दिया है इस कलाम के जरिए? किसी को याद है? So it is written, we have received the abundant grace and the gift of righteousness through Jesus Christ. और हमें बहुतायत का फजल मिला है, अनुग्रह मिला है और उसकी मुफ्त में रास्तबाजी मिली है। So those who agree, you can say, I received और मैं पा लिया हूँ the abundance grace और कसरत के फजल को, and महिमा the को, gift of righteousness और मैं रास्तबाज का तोहफा पा लिया है through Jesus Christ. और यीशु मसीह के जरिए। Amen. आमेन। Through Adam we have received the sin, death, curses in our life. और आदम के जरिए हमें मौत मिली है, हमें बीमारी मिली है और Through Adam the sin entered. और गुनाह, और आदम के जरिए गुनाह हमारे अंदर आया। And through sin death entered. और गुनाह के वजह से मौत आया। When death and sin was ruling the mankind, they brought sorrows and sickness over mankind. जब गुनाह और मौत आया तो फिर वो हमारे अंदर बीमारियों को लेकर आया, परेशानियों को लेकर आया। And the curses came upon mankind. और सारे जो लालतें हैं वो आ गई और सारे श्राप हमारे अंदर आ But गए। that is not the good news. पर ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं The थी। good news is, हमारे लिए ये अच्छी खबर है। everyone you can lift your hands and say, good news is, मेरे लिए अच्छी खबर है, through Jesus Christ, यीशु मसीह के जरिए God has given us और खुदा ने हमें abundance grace कसरत का फजल दिया है and the gift of righteousness. और रास्तबाजी का तोहफा दिया है। Amen. आमेन। So when we are in Christ Jesus, जब हम यीशु मसीह में हैं, we are no more sinners. हम इसके बाद से गुनहगार और पापी नहीं हैं। The sinner is the realm. और जो पाप और गुनाहगार वो एक जगह है It leads to destruction. और वो वैसी जगह है जहाँ हमें नाश की तरफ लेकर The जाती है। sinner is the way. और ये जो गुनहगार The sin है is the way और जो गुनाह है वो एक रास्ता है that ends in the hell. और वो जाकर नरक में पहुंचा देता है। So God delivered us from every sin. और खुदा ने हमें पाप से छुड़ाया है And He has given us abundance grace. और उसने कसरत का हमें फजल Keep और on saying, I अनुग्रह दिया received the abundance grace. है। मैं कसरत का फजल I अनुग्रह को received the पाता हूँ। abundance grace. मैं कसरत का फजल को पाता You हूँ। may ask why God has given this abundance grace. आप पूछेंगे क्यों मुझे खुदा ने ये कसरत का फजल और अनुग्रह दिया है? So you can live a sinless life. ताकि हम एक ऐसी जिंदगी जिए जो पाकीज़गी की है, पवित्रता की है। Hallelujah. So you can live a life that well pleasing to God. ताकि आप ऐसी जिंदगी जी सकते हो जो खुदा को पसंद आता है, खुदा खुश होता है। Amen. Amen. So what we are today, और आज जो कुछ हम हैं, we are because of the grace of God that is poured into our life.
आज जो कुछ हम हैं उसके अनुग्रह उसके फजल के वजह से है जो उसने हमारे जिंदगी में उंडेला है। Someone may not agree. They say, what I am today is because of my prayer life. और कोई कह सकता है कि आज मेरी ये जिंदगी है क्योंकि मेरी अच्छी दुआ की जिंदगी है, इसके वजह I से। totally agree with you. मैं आपके साथ सहमत हूँ। But to pray, God has given you the grace. क्योंकि आपको दुआ करने के लिए भी खुदा ही फजल और अनुग्रह देता है। Hallelujah. हालेलुया। So those who are not praying, you can ask more grace and start to pray. और जो दुआ नहीं करते हैं वो और फजल को और अनुग्रह को पूछ सकते हैं ताकि खुदा आपको और फजल अनुग्रह दे दुआ करने के लिए। So you all agree that in Christ Jesus, God has given us abundance grace and the gift of righteousness. क्या आप सहमत होते हो कि खुदा यीशु मसीह के जरिए हमें बहुत का फजल अनुग्रह मिला है और रास्तबाजी का धार्मिकता का तोहफा मिला So है। in the scripture it is written why that grace and the gift was given. Romans chapter 5 verse number 17. अगर आप पूछेंगे कि क्यों वो फजल और वो रास्तबाजी का तोहफा आपको दिया है, रोमियो की 5:17 में। If you open your Bible, the answer is there. Please give me the answer. और फिर अगर आप बाइबल खोलेंगे तो उधर ही आंसर है। No? मिला नहीं? Okay, we will read together. You will get the answer. How much more will those who receive the abundance grace and the gift of righteousness reign in life through one man called Jesus Christ? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य है अनंत जीवन में राज्य करेंगे। So why the abundance grace and the gift of righteousness is deposited in you? अब बहुतायत का फजल अनुग्रह और रास्तबाजी धार्मिकता का गिफ्ट आपको क्यों दिया गया है? Please ask your neighbor, help me. और आप अपने नेबर से पूछें और कहें कि मुझे मेरी मदद करें। He's ready to help you? क्या वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है? Or he's only opening the Bible today? सिर्फ वो आज ही बाइबल खोल रहा है। What is saying? क्यों दिया है? क्यों आपको फजल और रास्तबाजी का तोहफा दिया हुआ है? Okay, I say eternal life करके उधर नहीं है। हालेलुया, क्यों दिया है? Answer is there. वसीले से दिया, but क्यों दिया है? जिंदगी पाने में। Okay, आंसर आया है। He has given us so we can rule in this life, not after the death. और हमें इसलिए फजल अनुग्रह दिया है, रास्तबाजी का तोहफा दिया है, जब हम जिंदा है तभी हम उसको राज करें, रूल करें। हालेलुया, the word राज करे करके उधर है। क्या रूल करना, रेन करना वो लिखा हुआ है? Okay, I will read in English. Someone help me. What is in the Hindi? Hallelujah. He has given us the abundance grace and the gift of righteousness so we can reign in this life. अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज करेंगे। और उर्दू में क्योंकि जब एक शख्स के गुनाहों के सबब से मौत ने उसके जरिया एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। then I give you the point because there was, but in my English translation written, he has given these gifts so he desired that we should reign in this life. और यहाँ पर इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वो कहा गया है कि इस दुनिया में अभी राज अभी करने right की, now God want you should rule over your situation. और खुदा चाहता है कि आपकी जो भी हालात है, जो भी आपकी परिस्थिति, उसके ऊपर आप रूल करें। So for example, you have a situation called sickness. और आपकी ऐसी एक परिस्थिति है जहाँ पर आप बीमारी में हो। Maybe you have a situation called lack of finances. और हो सकता है आपकी ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर आपके फाइनेंसेस, पैसे आपके हाथ में नहीं है। Maybe there is a situation you already crossed your marriage age and you are not getting the proposal. और हो सकता है आप ऐसे जगह पर हो जहाँ पर आपकी शादी की उम्र निकल चुकी है और आप खड़े हो And you are trying your best to bring your family. It is not happening. और आप पूरी कोशिश कर रहे हो अपने परिवार के साथ रहने के लिए, परिवार को लाने के लिए, पर ये हो नहीं रहा है। Maybe you are trying your best to change the job, but you are not happening it. और आप पूरी कोशिश कर रहे हो
कि आपकी जॉब बदल जाए और वो हो नहीं रहा है, So whatever may be the situation, और जो कुछ भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, laughing over you, और वो परिस्थिति हो सकता है आपके ऊपर हंस रही हो, maybe discouraging you, हो सकता है आपको निराश कर रहा है, मायूस कर but रहा the है, Lord is saying today, पर आज खुदा कह रहा है, my son and my daughter, मेरा बेटा और मेरी बेटियां, I have given you the abundance grace, मैंने तुझे इसलिए कसरत का फजल और अनुग्रह दिया I है, have given you the gift of righteousness. और इसलिए मैंने तुझे रासबाजी और धार्मिकता का तोहफा दिया है। Now you have to arise अभी तुझे उठना है और प्रकाशमान मुनव्वर होना है, and you have to declare my और word. तूने मेरे बातों को, मेरे कलाम को कबूल करना So है। as you declare the word of God, और जब ये खुदा के कलाम को आप कबूल करोगे और घोषणा करोगे, angels will be और activated, तभी खुदा के फरिश्ते, उसके स्वर्ग दूत आपकी मदद के लिए the आएंगे, fire will be और activated, खुदा पाकरू की आग एक्टिवेट होगी, the miracles will be released, और तब अब मौजे हो गए the heaven will open, और आपके लिए स्वर्ग खुलेगा, your situation will और change. तभी आपकी परिस्थिति है वो बदल Tell your जाएगी। friend, my situation will change. मेरी परिस्थिति बदल My जाएगी, situation will change. मेरी जो हालात है वो बदल My जाएंगे, situation will change. मेरा हालात बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Who will change the situation? कौन आपकी हालात को बदलेगा? Who will change the situation? कौन आपकी परिस्थिति को बदल देगा? हालेलुया। बाजू वालों को हिला के बोला तेरा मुंह, ते- your mouth, आप- your mouth, not God. Hallelujah. God ने already grace दिया है. God ने already आपको gift of righteousness दिया है. God ने already आपका गुनाह माफ किया है. God ने already आपका गरीबी को निकाला है. God ने already the blessings of Abraham को आपको दिया है. Now you have to open your mouth. और ये सारी बरकतें खुदा ने दे दी है, अभी अपने मुंह को खोल कर उसको कबूल कर कर वो सारी बातों को हासिल करना है। So what comes out of your और mouth, जो कुछ आपके जबान से बाहर निकलता है, it will either rule you or either serve you. और ये आपके ऊपर हुकूमत करेगी या आप उसके ऊपर हुकूमत करोगे। बाजू वालों को पूछो क्या आपने सुना? क्या आपने सुना? क्या बोलते हैं वो? अरे what comes out of your mouth, जो बातें आपके मुंह से जो निकलती है, either it will rule you वो बातें आपकी जिंदगी के ऊपर रूल करेगी, or it will serve you. और नहीं तो ये बातें आपकी सेवा करेगी। So what you want? क्या आपको चाहिए? You want someone should rule you, destroy your life? आप चाहते कि कोई आपके ऊपर कब्जा करे और आपकी जिंदगी को रूल करे? So you want your finances should be stuck and your bank account always empty? आप चाहते हो कि आपके फाइनेंस उधर ही रुक जाए और आपके हमेशा बैंक बैलेंस जीरो रहे? So very simple, speak every time negative words. और अगर ये करना है तो हमेशा जो नेगेटिव वर्ड्स है, नकारात्मक बातों को आप बोलते रहे, And that situation will be created. और वो ऐसे हालात और ऐसे माहौल बन जाएगा। And you will ask, where is the God? और फिर आप पूछेंगे कि खुदा बाप किधर है? अगर आप मेरे से पूछेगा खुदा बाप किधर है, मैं बोलूंगा खुदा बाप आपके अंदर है. Amen. Hallelujah. The God is in you and He's given His grace. He has given His gift of righteousness. So you be bold and courageous and declare His word. और इसीलिए आपने बोल्ड होना है, आपने बब्बर शेर के जैसे, और वो बातों को जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर के कलाम है, उसी बात को आपने दोहराना है और बोलना है। When we meditate the book of Genesis chapter 1, we are not going there. और जो पैदाशी है, जो उत्पत्ति की किताब है, उसके ऊपर अगर आप मेडिटेट करोगे, When the Lord spoke, जब खुदा ने बात किया, He told, let there be light. और जब उसने कहा कि वहां पर रोशनी हो The जाए, Holy Spirit start to activate. और हम देखते पाकरू वहां काम करना शुरू किया। Now Holy Spirit is in you. अब वही पाकरू आज आपके अंदर बसा हुआ है। When you speak the word, जब आप उसी तरह से वो कलाम को कबूल करोगे और घोषित करोगे, the Holy Spirit, hallelujah, do the miracles in your life. तो वही पाकरू आपकी जिंदगी में उसी तरह से मौजे करेगा। So what comes out of your mouth, इसीलिए जो कुछ आपके मुंह से बाहर निकलता है, either it will rule you और वो आपके ऊपर रूल करेगा वो बातें, or it will serve you. नहीं तो वो आपकी सेवा करेगा। So today onwards you have to speak who you are in Christ Jesus. आज के बाद से आपको ये कबूल करना है कि यीशु मसीह में मैं कौन हूँ। You should tell yourself, I will not agree what my mind says. और आपने कहना है कि जो मेरी सोचे बोलती मैं उसके साथ सहमत नहीं I होता will हूँ, not agree what my situation और says. मेरी जो हालात मुझे जो बोलती है मैं वो उस हालात के साथ नहीं I will दूंगा। not agree what my parents
parents says. और मैं उसके साथ सहमत नहीं होता जो मेरे माँ बाप मेरे बारे में कहते हैं। I will agree what the word of God मैं says. इसके साथ सहमत होता हूँ जो खुदा का कलाम मेरे बारे में क्या कहता Those who है। have Bible, you can lift and say, I will agree what the word of God और says. जिसके पास बाइबल है वो कह सकते हैं मैं उसके साथ सहमत होता हूँ, कलाम के साथ। I am what the word of God says that I am. जो खुदा का कलाम मेरे बारे में कहता है वही मैं हूँ। Hallelujah. I have all things that the word of God says it is given to me. और खुदा का कलाम कहता है कि जो चीजें मेरे पास होनी चाहिए वो सारी चीजें मेरे पास है। जो हालेलुया खुदा का कलाम बोलता है जो चीज उसने दिया है वो मेरा है यीशु के नाम से। आमीन। Amen. So when you have like this attitude or mentality, और इस तरह की सोच और इस तरह का एटीट्यूड आपका जब होगा, you will be called a warrior. और तब आप एक जब सैनिक होता है वो जो लड़ाई में युद्ध करता है वो सोल्जर आप Say, I am a warrior of Jesus. मैं सोल्जर हूँ यीशु मसीह I का। am born to rule the nations. और मैं इसलिए पैदा हो गया हूँ ताकि मैं राज्यों के ऊपर अधिकार चलाऊं। So God has given me the abundance grace और खुदा ने मुझे कसरत का फजल दिया है, and the gift of righteousness. उसने रास्तबाजी का तोहफा मुझे दिया है। I will rule over my finance. और मैं मेरे फाइनेंस के ऊपर रूल करता I हूँ, will rule over my health. और मेरे हेल्थ के ऊपर मैं रूल करता हूँ। Hallelujah. I will rule over every situation. और सारे जो भी हालात है उसके ऊपर मैं रूल करूंगा। I bring them to the obedience of Jesus Christ. और वो सारी बातों को यीशु मसीह के काबू में उसके ताबे में लेकर आता हूँ। Amen. आमीन। We are continuing. We are moving to the another scripture today. और दूसरे कलाम में हम आज आगे It बढ़ेंगे। is my favorite scripture from the Bible. और मेरा सबसे पसंदीदा कलाम है बाइबल से। And I have taken this scripture from Amplified Bible. और मैंने जो एम्पलीफाइड बाइबल होती है जो बहुत डिटेल में बताती है उसका सहारा लिया है। So John Gospel chapter 1 verse number 16. और यूहन्ना की किताब 1:16 में इसके बारे में लिखा है। It says in my translation, for out of his fullness he has given us supernatural grace and truth. We all received grace upon grace. That's called spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, gift upon gifts are heaped upon us. और इस तरह से लिखा है कि उसके अनुग्रह के द्वारा उसने बहुतायत से मुझे फजल के ऊपर फजल दिया है, सारी स्पिरिचुअल आत्मिक ब्लेसिंग के ऊपर, रूहानी ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग दिया है, फेवर के ऊपर फेवर दिया है। So have a small homework now. और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है अभी इस वक्त। Hallelujah. Go through the scripture ये इस कलाम को आप पढ़ें and tell me what all things are given to you. और आप इसमें से इसको देखें और कहें कि क्या क्या चीजें खुदा ने आपके लिए दी है। The first question, he is going to give or already given? ये मेरा सवाल है कि ये आपको देने वाला है कि इसने आपको ऑलरेडी दे दिया है। So thank you. So it is already given. What all things are given? और क्या क्या बातें इस कलाम के जरिए आपको दे दी गई है। Okay, grace upon grace. सिर्फ grace नहीं है, grace upon grace is given to you. अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, फजल के ऊपर फजल आपको दिया गया है। Amen. Gift upon gift are heaped upon you. Thank you. और तोहफे के ऊपर तोहफा आपको दिया गया है। Okay. Favor upon favor is given to you. आपके ऊपर फेवर दिया गया है। One more thing. Spiritual blessings upon spiritual blessing is given upon you. और रूहानी बरकतें हैं, जो आत्मिक बरकतें हैं वो सारी आपको बरकतों के ऊपर बरकत दिया So गया। let you lift our hands and say thank you, Lord. हमारे हाथों को उठाकर कहेंगे Lord, खुदा open शुक्र- my eyes to see these blessings. और खुदा बाप मेरे आंखों को खोल दे ताकि ये सारी बरकतों को मैं देख सकूं। Out of your fullness, और तेरे पूरे बहुतायत रूपी से you have given me grace and truth. और तूने मुझे सच्चाई और फजल दिया है। And you have given me the grace upon grace. और तूने मुझ पर फजल के ऊपर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह You दिया have है। given me spiritual blessing upon spiritual blessings. रूहानी ब्लेसिंग के ऊपर और रूहानी ब्लेसिंग दी गई है। You have given me favor upon favor. और तूने मेरे पर फेवर के ऊपर फेवर किया हुआ You है। have given me, hallelujah, gift upon gift. You are heaped gift upon my life. और गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट जैसे भर भर के देते उस तरह से आपको दिया गया है। Amen. So Amen. if you meditate this word, जब आप इस कलाम के ऊपर ध्यान लगाओगे, मेडिटेट करोगे, as the light enters to your mind, और जब रोशनी आपके अंदर आ जाएगी, you will never feel you are forsaken. आपको कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होगा, कभी भी महसूस नहीं होगा कि मैं छोड़ दिया गया हूँ और त्याग दिया गया You हूँ। will never feel God is not with you.
you. और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगी कि खुदावंद आपके साथ नहीं है। So if anyone is feeling that God has forsaken, that is demonic feeling, that not the Holy Spirit feeling. अगर किसी को ऐसा फील होता है कि मैं अनाथ हूँ, मुझे ने खुदा ने छोड़ दिया है, तो वो फीलिंग है वो रूह की तरफ से नहीं है। तारीकी की बादशाही की ओर से। So if anyone is feeling I'm not fruitful, I'm not successful, that is a lie of the devil. You have to cut off from your mind. और किसको इस तरह से लगता है कि मैं नाकामयाब हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो ये सारी सोचे तारीकी की बादशाही से है। Because the God says, क्योंकि खुदा कहता है, I have given you the grace. मैंने तुझे फजल दे दिया है। And I have given you the grace upon grace. मैंने तुझे अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, फजल के ऊपर फजल किया My है। favor is upon your life. और जो मेरा फेवर है वो तेरे जिंदगी के ऊपर है। Now, the big question, और सबसे बड़ा सवाल, how to experience these things. और कैसे ये सारी बातें जो लिखी गई है वो मेरी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। So, it is very clear in the Bible, I think 1 Corinthians chapter 2 verse number 9. और पहले कोरिन्थियों 2:9 में बहुत क्लियरली लिखा गया है, God has prepared all good things for us. खुदा ने सारी अच्छी बातें हमारे लिए तैयार करके रखा He है, has given grace upon grace. और उसने हम पर फजल के ऊपर फजल किया है। Now we want to experience this. अभी ये हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में जाहिर हो, हम इसको एक्सपीरियंस करें। So God has already deposited these things in our spiritual bank account. और ये सारी बातें, ये जो हमारे जो रूह के जो बैंक अकाउंट में सारी बातें डाल दी गई It है, is deposited in our spiritual body. और हमारे जो रूहानी बदन है इसके अंदर सारा डिपॉजिट करके रखा So हुआ है। now we want to experience on this earth. अभी हम चाहते हैं कि जब इस दुनिया में हम चलते हैं ये सारी बातें जाहिर हो। So what we should do? तो अभी हमने क्या करना है? Anyone can help me? क्या कोई मदद कर सकता है किस तरह से हमारे So you agree these all things are given by God, that we should experience this. क्या आप सहमत होते हैं कि ये सारी बातें खुदा ने दे दी है और हमने एक्सपीरियंस करना So है? God we should reign over this life. और खुदा चाहता है कि इस जिंदगी के ऊपर हम रूल करें, The problem should not laugh over us. We should laugh against the problem. और हम नहीं चाहते कि जो हालात है वो हम पर हंसे, पर हम हालात के ऊपर हंसे। We should not fear the devil. Devil should fear us. हम शैतान को ना डरे, पर शैतान ने हमसे डरना चाहिए। So how it going to happen? और ये किस तरह से मुमकिन है? Anyone can help me? Okay, confess, declaration. Any this side? Hallelujah. You understood the message? Hallelujah. God has given us, hallelujah, what we need in our life. और जो कुछ हमारी जिंदगी की जरूरत है उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है। So what we should do? अभी हमने क्या करना है? So whatever He has given, start thanking Him. और जो कुछ उसने हमें दिया है तो हमने उस बातों के लिए शुक्रगुजारी For करनी है। example, He has given us grace upon grace. और उसने हमको फजल के ऊपर फजल, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह किया You है। have to put the scripture in your mind. और ये जो कलाम को हमारे सोचों में डालना You है, have to see them in your spiritual mind और अपने- or spiritual eyes. और रूहानी आंखों से आपने ये कलाम को देखना When है। you close your eyes, the scripture should appear in your mind. और जब अपनी आंखें बंद करती हो तो वो कलाम आपके सामने दिखना And you should चाहिए। say, thank you, Lord. Grace upon grace you are given to me, Lord. और आपने उसी तरह से उसको बोलते रहना है, शुक्र करना है कि खुदावन मैं शुक्र करता हूँ तूने मेरे पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, फजल के ऊपर Abundance फजल। grace is given to me, O Lord. और कसरत का ग्रेस हमें दिया गया Gift है। of righteousness is given to me, O Lord. और रास्तबाजी का तोहफा तूने मुझे दिया You है। are given me the favor, O और God. तूने मेरे पर फेवर किया हुआ है। You are heaped my life with the gifts, O God. और सारे तोहफों के साथ मुझे मालामाल किया So है। as you prepare your heart with this word, जब अपने दिल को आप तैयार करते हो इस कलाम के जरिए, the faith will arise in you. तो जो ईमान है, जो आपका विश्वास है वो बढ़ The जाएगा। faith will be produced in you. और जो ईमान है वो और बढ़ जाएगा। So once the faith is produced जब ईमान आपका बढ़ जाएगा and you start to declare, और जब आप उसको मुंह से कबूल करना और घोषित करना शुरू you करोगे, will see the result. तो आप रिजल्ट्स को, नतीजे को Tell you often, देखोगे। you will see the result. मैं नतीजों को देखूंगा, You will see the result. मैं नतीजों को देखूंगा, Because you are not declaring your will. क्योंकि आप अपनी मर्जी को जाहिर नहीं कर रहे हो You are not declaring your wish. और आपकी जो ख्वाहिश है उसको बता नहीं रहे You हो, are declaring the truth.
आप सच्चाई को घोषणा कर रहे हो। Hallelujah. When you are declaring the truth, जब आप सच्चाई को कबूल करते हो, घोषणा करते हो, the heaven stands with you. तो जो पूरा स्वर्ग आपके लिए खड़ा हो The जाता है, angel stands with you. और जो उसके फरिश्ते हैं वो आपके लिए खड़े हो The जाते Holy हैं, Spirit stands with you. और पाकरू आपके साथ खड़ा हो So जाता है। decide today. तो इसीलिए आज आप निर्धार करें Receive this grace. और इस फजल को आप पाले। Lord, I agree with your word. और खुदावन तेरे कलाम के साथ मैं सहमत होता Lord, हूँ, what your word says, that I will confess. और जो तेरा कलाम कहता है वही मैं कबूल करूंगा, Lord, what your word says, I will agree. और जो तेरा कलाम बोलता है मैं उसके साथ सहमत Your होऊंगा। word says you have prepared a great future for me. और तेरा कलाम कहता है तूने मेरे लिए बहुत अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा मुस्तकबिल रखा है, Lord, I shall be a blessing to nations, O और God. मैं कौमों के लिए बरकत बनूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So second point, how to experience these blessings. और किस तरह से हमारी जिंदगी में ये गिफ्ट्स को, ये ब्लेसिंग को हम जाहिर करें। We are going to read from John Gospel, chapter 15, verse number 7. और यूहन्ना की किताब 15:7 में हम पढ़ेंगे। As you started with the first point, और जिस तरह से आपने पहले पॉइंट से स्टार्ट किया, by seeing the scripture in your mind वो कलाम को अपने अपने सोचों में अपने रखना है, and thanking God, और खुदा को शुक्र करना है। you उस are काम के लिए। advancing in the kingdom of God. खुदा के बादशाह में आप तरक्की करते Tell your रहोगे। friend, आप अपने दोस्त से कहें, my dear friend, और मेरे दोस्त, when you keep the word of God in your mind, जब आप खुदा के कलाम अपने सोचों पे, अपने दिमाग में रखते हो, when you start to see those scriptures और वो कलाम को आप देखना शुरू करते and हो, start to thank the Lord, और खुदा को शुक्र करना शुरू करोगे, you are advancing in the kingdom of God. आप खुदा के बादशाह में तरक्की करते रहते हो। Hallelujah. हालेलुया। Let me assume you are in the debts now. और अब ऐसा एक हालत होगा जहाँ पर कोई एक कर्जे में है, Let me assume you are in the debts of 50,000 dirhams. और 50,000 के कर्जे में आप And हैं। you don't want to be in the debts. आप चाहते नहीं हो कि उस कर्जे में आप रहो, And you know it is not God's will that you should remain in the debts. और आप जानते हो कि खुदा की मर्जी नहीं है कि आप कर्जे में रहो। And God says, I will make you the और lender. खुदा का कलाम तो इस तरह से कहता है कि मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। But if you open your eyes, you will see the 50,000 debts. और जब अपनी आंखों को खोलते हो तो आप देखते हो कि आप कर्जे में हो। But when you close your eyes, you should see the scripture. जब आपकी आंखें बंद होती है तो आपने कलाम को देखना है। Lord, you give me the power to prosper. और तू मुझे कुव्वत देता है तरक्की करने के In लिए। your name, I will prosper. तेरे नाम से मैं प्रॉस्पर कामयाब होता In हूँ, your name, I shall be the lender. और तेरे नाम से मैं देने वाला So बनूंगा। as you see those scriptures in your mind, और जिस तरह से खुदा के कलाम को आप बार बार देखते रहोगे, as a man of God, I prophesy over your life. और खुदा का खादिम होते हुए आपकी जिंदगी में नबवत करता हूँ। The scripture will elevate you to another और level. वही कलाम है जो आपको दूसरे एलिवेट करेगा, आपको दूसरा ऊंचा जगह करेगा। पर, for example, you are in the ground floor. जिस तरह से अगर एग्जांपल में आप ग्राउंड फ्लोर पे है, You want to reach the 30th floor. आपको 30वें माले पे चढ़ना है। Try to walk. It is difficult to reach. अगर आप चल के जाओगे तो बहुत मुश्किल है। Maybe मुश्किल से आप गए, फिर वापस आने का कुछ गारंटी नहीं मिलेगा 30 माला चल के. So there is an elevator. इसीलिए आपके लिए एक जो एलिवेटर है, जो लिफ्ट कह सकते हैं। So you go inside जब आप अंदर जाते हैं and elevator close और जब लिफ्ट बंद हो and जाएगी, you press 30 और जब आप 30वां माला को दबाओगे, and within I think 30 seconds you reach there. और 30 सेकंड्स में आप ऊपर पहुंच जाते हो। Suppose if you refuse to go to the elevator, आप बोलोगे कि मैं लिफ्ट में नहीं जाऊंगा no, I will walk. और मैं चल के ही जाऊंगा, कोई आपको रुकाएगा नहीं, जाओ बिंदास जाते रहो, but you will struggle. पर आप जब चल के जाओगे 30वें माले तक तो आप बहुत संघर्ष करोगे। But there is an elevator is placed in that building. पर उधर एक लिफ्ट रखी हुई है उस बिल्डिंग में, Lift your Bible and say, God has placed the elevator in my hand. और खुदा ने इस एलिवेटर को मेरे हाथ में दिया है, बाइबल को। As we enter inside this elevator, और जब हम खुदा के कलाम के अंदर चले जाते हैं, as we hold this word in our mind, और इस कलाम को हमारे सोचों में हम उसको रख देते as a हैं, man of God, I prophesy over your life. और खुदा का खादिम होते हुए आपकी जिंदगी में नबवत करता हूँ। This word will take you to the another level. कलाम आपको एक दूसरी ऊंचाई में लेकर जाएगा। You will see the success in your life. आप कामयाबी को आपकी जिंदगी में You will see देखोगे, the prosperity in your life. तो आप बहाली होते हुए देखोगे, Your bank account will be blessed. तो आपके बैंक अकाउंट भी ब्लेस होगे। Hallelujah. Are we reached the John chapter 15 verse number 7? और यूहन्ना 15:7 में हम पढ़ेंगे। So what I said, it is there in the word. क्या जो मैंने कहा वो कलाम में है?
हाँ? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहो तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen. So the Bible says when we abide in Christ. जब हम यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं। Who is Christ? और यीशु मसीह कौन है? Christ is the word of God. और यीशु मसीह आज कलाम है। Christ is the lamp of God. और यीशु मसीह मेमना है, खुदा का मेमना So है। when we abide in his sacrifice, जब हम उसके साथ उसके सहमत, उसके जो बलिदान के साथ सहमत होते हैं, बने Jesus रहते says हैं। when you come together, do this in my और remembrance. यीशु मसीह कहता है कि जब तुम साथ में मिलो तो मेरे यादगार के So लिए when क्या we are करो? remembering the sacrifice of Jesus, और यीशु मसीह के उस कफारे को आप याद करते हो, when we are remembering the blood of Jesus, और यीशु मसीह के उस कीमती लहू को जब याद करते हो, tell your friend, I'm abiding in Christ. मैं यीशु मसीह में बना रहता हूँ। Hallelujah. How you abide in Christ? और किस तरह से आप यीशु मसीह में बने रहते हैं? Hallelujah. You will put one cross on your neck क्या एक जो क्रॉस को आपके गले पे टंगाएंगे and you will put some, what do you call? इससे डालते हैं, हाथ में भी डालते हैं. Tattoo. Okay, you are not abiding by putting a tattoo on your hand or putting a cross on your neck. और एक क्रॉस आपके गले में लगा के, एक टैटू आपके क्रूस का लगा के, इसका मतलब नहीं है कि आप यीशु मसीह के साथ बने रहते हो। क्रॉस आपका गले में नहीं, क्रॉस का मैसेज आपके दिल में होना चाहिए। आमीन। Hallelujah. When the Hallelujah. truth is in you, जब सच्चाई आपके अंदर होगी you will never be defeated. तो कोई आपको हरा नहीं सकता Tell your है। friend, when the truth of God is in you, जब सच्चाई आपके अंदर रहेगी it will torment the devil. वो शैतान को परेशान करेगी। Hallelujah. हालेलुया। अभी तक शायद शैतान आपको परेशान किया होगा। As a man of God, I prophesy over your life. As you hold the truth will torment your enemy. आज प्रभु खुदा का दास होते हुए आपके नबूवत करता हूँ कि जब आप सच्चाई को थामे रखेंगे तो ये सच्चाई है वो जो शैतान को तंग करेगी। Maybe you are tormented by the poverty. हो सकता है आपको जो गरीबी है वो आपको तंग कर रही है। Maybe you are tormented by the lacks. और हो सकता है जो कमी होती, किसी बात के लिए आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। Maybe you are tormented by the sicknesses. और बीमारी आपको तंग कर रही है। Thus says the Lord. और खुदा इस तरह से कहता है, Arise and shine. आप उठो और मुनव्वर हो I जाओ, have given my grace upon you. क्योंकि मैंने तुझ पर फजल के ऊपर फजल किया है। Declare my word with boldness, says the और Lord. खुदा का कलाम सच्चाई के साथ और जोर से आप उसको कबूल It will करें। burn out the root of your और problems. जो जड़ है, जो प्रॉब्लम की जड़ को वो खत्म कर देगा। It will torment the demons. और जो शैतान है जो आपको तंग कर रहा है वो उसको तंग करेगा। If you are comfortable, tell your friend. और अगर आप सहमत होते हो तो आप कह सकते हो, Hallelujah. When the word is in your mouth, खुदा का कलाम आपके जबान में होगा तो it will be torment to the demons. वो शैतान को परेशान कर देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We all should be the word eaters. और हम खुदा के कलाम को खाने वाले बने। Thank God some of you are meat eaters. और अच्छी बात है, बहुत सारे मटन मांस मछली सब खाते, अच्छा है। अरे थोड़ा कम खाना, आजकल बोलते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और कोई बोलते हैं प्रेयर करके सब खा सकते हैं करके। बट इट इज अगेन इट्स योर चॉइस, बट आई एनकरेज यू, लेट वी बी द ईटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के कलाम को खाने वाले बने। As you eat the word, जब आप खुदा के कलाम को खाओगे you will expand in the spirit. आप रूह में बहुत फैल जाओगे। Hallelujah. How you eat good food, your body expands और जिस तरह से अच्छा खाना खुराक मिलने से आपका बदन शरीर फूलता है and you become healthy. और आप बहुत तंदुरुस्त हो जाते हो। Same way when you eat the word of God, उसी तरह से जब खुदा के कलाम को आप खाओगे your spirit expands. आपका जो रूह है वो बढ़ जाएगा, फैल You जाएगा। are becoming a blazing fire in the spirit. और रूह में आप एक चमकती हुई धार वाली तलवार बन You जाओगे become the flame of fire in the spirit. और दगदगाती हुई आग के जैसे आप बन जाओगे रूह में। And as you walk, your shadow will fall on sick. और जब जिस तरह से आप चलोगे आपकी परछाई गिरने से बीमार शिफा पाओगे। The sick will be healed. और जो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे। So as your pastor, I encourage you, मैं आपका पास्टर होते हुए आपके लिए एनकरेज करता हूँ be the word eaters. और खुदा के कलाम को खाने वाले बनो। Make sure you eat every day the word of God. और ये जरूर करें कि रोज आप खुदा का कलाम को खा रहे हो। I met thousands of people. हजारों लोगों के साथ मेरे मुलाकात हो गई I है। never met a person who told, Pastor जी आपको मालूम है क्या, मैं रोज खुदा का कलाम खाया, आज मैं गरीब बना। No. I met the person, मैं गरीब था, मैं रोज खुदा का कलाम कलाम पढ़ा, कलाम को खाया, आज खुदा ने मुझे गरीबी से
मिटा दिया। गरीबी को मिटा दिया। आमेन। Hallelujah. You want to come out from the poverty? आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो? There is only one way. और एक ही रास्ता है। What is that? और वो कौन सा है? Thank God तुम लोग Jesus नहीं बोला. Hallelujah. Jesus is the way for your salvation. यीशु मसीह तो जरिया है आपके नजात पाने के लिए। Jesus is the way to the heaven. और यीशु मसीह रास्ता है स्वर्ग में जाने के But लिए। come out from the poverty. पर अगर गरीबी से बाहर निकलना है तो, To come out from the curses. और सारे श्राप और लानतों से बाहर आना है तो, You must eat the word. तो आपने खुदा के कलाम को खाना है। You must eat the word. आपने खुदा के कलाम को खाना Tell है। your friend, hallelujah, feel free to eat the word. और आप आजाद हो जाओ खुदा का कलाम खाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you're not feeding the word to your spirit, अगर आपके रूह को आप खुदा का कलाम नहीं खिला रहे हो तो क्या बोलूं मैं? अगर सोचिए इधर एक भाई है, वो इतना कंजूस है, हफ्ते में एक बार भी गलती से भी खुदा का कलाम नहीं पढ़ेगा, गलती से भी खुदा का कलाम अपना रूह को नहीं खिलाएगा। बिरयानी खाएगा, अच्छी बात है, मटन कढ़ाई खाएगा, अच्छी बात है, और क्या क्या है, जो भी अच्छी अच्छी खाएगा, खाना चाहिए, खुदा ने दिया है खाना चाहिए, बट अपनी रूह को नहीं खिलाएगा। क्या बोलेगा उसको? चलो ओके, आलसी सिस्टर आलसी बोल रहा है, ओके, और क्या, और क्या क्या बोलेंगे उसको? ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा वो रूह। He is a murderer of himself. और वो खुद का ही कातिल करने He is a वाला। worse than the devil. वो शैतान से भी वर्स्ट हो गया। Why worse than the devil? क्यों शैतान से भी वर्स्ट हो गया? अगर डेविल मिलेगा तो अब उससे बात करना, he knows the scripture. और अगर शैतान है, शैतान को खुदा का कलाम पता है। He tempted Jesus with the word of और God. उसने यीशु मसीह को आजमाइश में डाला कलाम के जरिए। If devil knows the word, अगर शैतान कलाम को जानता है so तो why you are not feeding your spirit with the word of God? क्यों अपने रूह को खुदा का खुराक है जो कलाम है वो नहीं खिलाते हो? So if you truly love yourself, अगर आप खुद अपने आप से प्यार करते हो you make sure you will read the word of God. तो आप अपने आप को मेक श्योर करोगे आप खुदा का कलाम You पढ़ोगे। will never give the excuses, brother. आपको मालूम नहीं, मुझे सुबह 5 बजे उठ के जाना क्या है, रात में 11 बजे आके सोने का, सोने के लिए टाइम है, नहाने के लिए टाइम है, खाने के लिए टाइम है, बट खुदा का कलाम के लिए अगर टाइम नहीं है, check yourself. Are you loving your soul or you are going to destroy your soul? तो आप अपने आप को चेक करें, सब चीजों के लिए आपके पास समय है, पर अगर खुदा के कलाम के लिए समय नहीं है तो क्या आप अपने जान से प्यार करते हो कि नहीं? So I encourage you, मैं आपको इनकरेज करता हूँ, read the word. खुदा के कलाम को पढ़िए। If there is no time, practically, yes, I agree. At least put the word in your ears. Keep on hear those Bible messages or Bible readings. और अगर हो सकता है सचमुच में आपके पास समय बहुत नहीं है तो आप कम से कम खुदा के कलाम को जाते आते समय कान में लगा के खुदा के बाइबल को आप सुन सकते हो। So 5 minutes I will take. I will explain you how to experience these blessings. और मैं 5 मिनट और लूंगा और कहूंगा कि किस तरह से इस ब्लेसिंग को हम एक्सपीरियंस The करें। third point, और तीसरा पॉइंट है, you must close the demonic doors. और जितने अगर शैतानी दरवाजे हैं तो वो दरवाजों को आपने बंद करना You है। cannot be one leg with Jesus आप इस तरह से नहीं रह सकते कि एक पैर आपका यीशु मसीह के साथ है and another leg with the world. और दूसरा पैर आपने दुनिया के तरफ रखा है। No, no, no. There is no middle way. और Middle ground. हमारे लिए कोई बीच का रास्ता नहीं है। Either you should be with Jesus अगर आप यीशु मसीह के साथ ही रह सकते हो or you should be with the devil. तो नहीं तो शैतान के साथ। So there is no middle ground. और बीच का कोई रास्ता नहीं है। Suppose you are one leg with Jesus अगर आप सोचेंगे कि एक पैर मेरा यीशु मसीह के साथ है and one leg is in the world. और एक दुनिया के साथ में जीऊंगा, Jesus says, I don't know you. और यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुझे जानता नहीं हूँ। Jesus says, you are a compromised person. और यीशु कहेगा कि तू समझौता करने वाला I will व्यक्ति है। cut off you from the book of life. मैं जीवन की जो पुस्तक की जो किताब में जहाँ तेरा नाम है वहां से मैं मिटा The दूंगा। compromise will hurt you badly. अगर आप समझौता करेंगे तो ये आपको बहुत दर्द देगी। So never live a compromised life. इसीलिए समझौता की जिंदगी जीना बंद कर So दो। how I will know I am living a compromised life or not? और किस तरह से पता चलेगा मैं समझौता की जिंदगी जी रहा हूँ? If there is no prayer altar, अगर आप मेरे घर में मेरे हार्ट में अगर
दुआ का मजबा नहीं है, that means you are living a compromised life. इसका मतलब है मैं समझौता की जिंदगी There जी is रहा हूँ। sin in your heart that is not allowing you to pray. अगर पाप गुनाह है जो हमें रोक देता है दुआ करने से, If you are hardly reading the word of God, or you are not reading the word of God, अगर बिल्कुल आप खुदा का कलाम पढ़ नहीं रहे हो और उसको ध्यान नहीं कर रहे हो, and you have a time for everything, और सारी बातों के लिए आपके पास समय है, and you have no time for your Jesus, और अपने यीशु के लिए जो नजात देने वाला खुदा के लिए आपके लिए समय नहीं you है, are living a compromised life. इसका मतलब है आप समझौता की जिंदगी जी रहे So हो। as long you live a compromised life, जब तक आप समझौता की जिंदगी जीते रहोगे, you will hear the good news, आप अच्छी खबर को सिर्फ सुनोगे, but you will not experience the good news. पर अच्छी वो खुशखबरियों को आपकी जिंदगी में वो आएगा नहीं। So you want to experience the good news? आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो अच्छी बातों को, Put गुड your न्यूज़ को, both the legs in the Jesus boat. तो दोनों पैरों यीशु मसीह के तरफ मोड़ दे Let Jesus lead our life. और यीशु मसीह हमारी जिंदगी को चलाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I'm ending my message giving one more point. और एक कलाम देके और मैं एंड करूंगा। I encouraged by this word. मैं एनकरेज हुआ हूँ इस कलाम से। Zechariah 4:7. और जकारिया की किताब 4:7, It's Zerubbabel is speaking here. और जरूबाबेल है वो यहाँ बात कर रहा He है। had a many obstacle to build the house of God. बहुत सारी रुकावट आए खुदा का घर बांधने के He लिए, wanted to build the temple in Jerusalem. और वो चाहता था कि एक मंदिर बनाए जेरूसलम He में, was called and anointed for their job. और उसके ऊपर मसा किया गया था, उसको बुलावट ही इसी कारण के लिए दिया गया But था। he saw a lot of obstacles. पर उसने देखा कि बहुत सारे तकलीफें उसके बीच में आ रही So है, what the Lord is giving him the key. और खुदा ने उसको क्या चाबी दी है, His faith arised, और उसका जो ईमान है वो बढ़ गया, and he started to speak against the mountain. और वो सारे पहाड़ के खिलाफ बात करने लगा। He said, "Who are you, O great mountain?" और वो जो पहाड़ों से कहने लगा कि क्या कौन है जो मेरे Before Zerubbabel, और मेरे विरुद्ध कैसे तू खड़े रह सकता you है? shall be plain, you shall be flat. और वो उस पहाड़ों से कह रहा है कि तू एकदम साफ हो जाएगा, And he shouted, "Grace, grace, grace upon my life." और उसने सिर्फ यही कबूल किया कि फजल फजल अनुग्रह मेरी जिंदगी के ऊपर है। So you want to experience grace? और उसी तरह से आप अनुग्रह फजल को और अनुग्रह को आपकी जिंदगी में अनुभव करना As चाहते I हैं, told you, how to open your mouth. तो आपने अपने मुंह को खोलना है You have to speak the mountain. और अपने पहाड़ों से आपने कहना You है, mountain of discourage. और जो मुझे निराशा करने, मुझे बेदिली करने वाला You जो पहाड़ mountain है, of disappointment. और जो मुझे निराश करने वाला You पहाड़ है, mountain of sickness. और जो बीमारी का पहाड़ है, You mountain of lack of growth and success in my life. और जो मुझे रुकावट देते, मुझे बढ़ने के लिए रोकती है, वो सारे You पहाड़ will है, be burnt और out. वो पहाड़ वो जल छाएंगे यीशु मसीह के नाम से, Because grace upon grace is given to me. क्योंकि फजल के ऊपर फजल, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह मुझे दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। Those who believe, lift your hands and say, "I will declare the word of God." मैं खुदा के कलाम को घोषित The करूंगा, abundance grace is given to me. मुझे कसरत का फजल The अनुग्रह दिया gift गया of है, righteousness is given to me. और रास्तबाजी का गिफ्ट मुझे दिया गया है, Hallelujah. Favor upon favor is given upon me. और मेरे ऊपर फेवर के ऊपर फेवर दिया गया I है। add finance into my life. मैं फाइनेंसेस को मेरी जिंदगी में लगा देता I हूँ, add growth in my finances. और मेरे फाइनेंसेस के ऊपर ग्रोथ को मांग लेता I हूँ, add, hallelujah, increase in my prayer life. और मेरे दुआ की जिंदगी को मैं बढ़ाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, By the grace of God, I build the prayer altar. और खुदा के फजल से मैं दुआ का मस्बा I will बनाऊंगा, eat the word of God. और मैं खुदा के कलाम को खाऊंगा, I will study the word of God. खुदा के कलाम को पढ़ूंगा, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Shabaraba ribobo she. Irabara sakaraka boro shanda. I can see the hand of God writing something over your life. खुदा का हाथ आपकी जिंदगी के ऊपर लिख रहा है, You can ask, what is that, और pastor? आप पूछेगी कि क्या है पास्टर, I can see success God is writing. और खुदा आपकी जिंदगी के ऊपर सक्सेस को लिख रहा है, Because you received the word, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को रिसीव किया, you honored God. तो आपने खुदा को इज्जत दिया, And God is writing, you are success. और खुदा कहता है कि आप सक्सेस कामयाब हो। Those who agree, lift your hands and say, I am success. मैं कामयाब हूँ, I am healthy. और मैं I am दुरुस्त हूँ, wealthy. मैं I am prosperous. prosperous। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से। Amen.